Right. than what they show. I have not seen it, but I just keep hearing about it. Is Anyway, we it are live now. जी So, Namaste, Sumitra Prasad, ma'am. How are you? जी नमस्ते जी, thank you, alhamdulillah, all is well. And welcome to the InspireX Conversations. Pleasure having you with us. You're one of our Karmavir Award recipients and the Karmavir Jyoti recipient also, right? Thank you. Yes, and we are happy to have you on the InspireX Conversation. Looking forward to being inspired by you. And of course, you're also featured in our Karma Kari Karma? books. So over to you. As you know, the format of the conversation is that for the first 45 minutes or so, you have a free-spirited, cool, candid, crucial conversation with our co-founder Itu Chopra. And then in the last 15 minutes, I'll join in to provoke some thoughts and insights, and then we'll sum up. Thank you so much. So over to you, Itu, and all the best, Sumitra. Thank you so much. Thank you, Jerry. Thank you, Jerry. Thank you. Namaste once again, Sumitra ji. Dr. Sumitra. Namaste. Thank you so Welcome much for to- having me. Thank you very much. Welcome to InspireX Monday Conversations, and we are very happy to have you here. You've also, been a part of our journey for a very long time now, haven't you? Yes, 10 years actually. How long have you been associated with us? I think 2009 was when I 10 got years. connected. Or Yeah, a decade. It's a 2000, long yeah. time. Yeah, so almost. I mean, yeah. So 10 years. 2010 was when I received the Karmavir Puraskar, so the Rex Fellowship that came in. So it's 2010, and now we are at the end of 2020. So it's been a decade-long journey with the Rex Parivar. You know, the family Right. of many of us are connected, and बहुत सारा काम एक integration में होता है. Yeah. It's like- And your son was also nominated in the last 2019 cohort, जी, and जी, he is also part of the the family. journey now. He's also a Exactly. Karmavir fellow. Yes, thank you so much. And it was a very it's really, you know, as a mother, it's always it's a fulfilling journey for a mother as well, you know, when you have the son also sharing the same platform as the esteemed platform of the Rex family. So it's really wonderful. And you know, when people say things about uh, putting down and thinking and believing that bas abhi itna hi hai aur kuch nahi ho sakta. So when you undermine the evolving capacity of a human being, no matter what condition he is born with, or no matter what socio-economic background से कोई आता हो, लेकिन जब आप पहले ही उसके ऊपर ब्रांड लगा देते हैं, थप्पा लगा देते हैं कि ये बंदा यहाँ से है, ये आगे निकल के नहीं जा सकता, तो that is, I think ये हमें ये नहीं करना चाहिए. And when we try and prove people and the society कि आगे बढ़ने में जिंदगी है, आगे बढ़ सकता है, अगर किसी को मौका दिया जाएगा तो वो अपने आप को साबित कर सकता है, उसके अंदर की जो भी क्षमता है वो बाहर उभर के आ सकता है, बशर्ते उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए. And I'm so happy to frankly when during the entire journey, like I said, of Rex के साथ हम जुड़े हैं, इस जर्नी में जब बहुत लोग मिलते हैं तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर पाते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं, और ये कारवा आगे जब बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है. तो सोशल चेंज का ये जो सफर है, ये बहुत सुंदर, सुरीला और मनमोहक हो जाता है. Yeah. As you rightly said, Sumitra ji, हमारा ये सफर माइंडसेट चेंज करने का है और इंस्पायर करने का है लोगों को कि डर के आगे जीत है, और together as one we can right every wrong, which is one of our slug lines. And you know, on 3rd December we celebrated the Ability Day, and you know, we were remembering your son also, that you know, the tenaciousness and the resilience of the mind has no limit. It is limitless. And as you said, that brand nahi karna chahiye, because what everyone has that heroic potential, that's what we talk of, that every human being, every child, every human being has the heroic potential. And that's what the Karma Kari book
see these talks about these real heroes like you're part of the Karma Karibo, real heroes who really have shown कि जब आप ठान लो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, और आपकी ताकत, वो सब ताकत जो आपके आसपास आपको कह रही है कि आप नहीं कर सकते, आप में वो नहीं हो सकता, उनको तोड़ के आगे बढ़ता जाता है. So thank you so much for being here, and lots of love and regards to your son as well. He's also a Karamveer fellow. So I'm going to begin with asking you, you're the founder and general secretary of an organization called DORAI. It sounds like a nice name, but I know it's an acronym. So would you like to talk about the acronym and tell us the plethora of work that you do in various fields? And it's a very integrated community development kind of a model that you have created, where you go beyond just giving the fish. You talk about giving the fishing rod. Tell me about that. Yes, thank you. I mean, it's very beautifully put. Thank you very much, Ito. आपने आधा सवाल का जवाब तो आपने ही दे दिया. So DORAI Foundation is a community-based rehabilitation organization which works towards empowerment at the grassroots level. तो communities में जाके काम करना, ये मतलब ये इसकी by default फितरत में आती है. DORAI Foundation, DORAI, stands for Development, Opportunities, Resources, Access and Insight. DORAI. तो हमारा जिंदगी का ये एक फलसफा है. The philosophy of life is that everybody, each one of us, every human being, every living soul has the potential, has the propensity to evolve and develop. Again, बशर्ते the person development के लिए हर एक eager होता है, आतुर होता है, but वो तब develop हो पाएगा जब उसको opportunities दी जाती है. Only when you have the opportunity to evolve and accentuate and upscale yourself will you be in that position. So opportunities hai, but what is the point of having the opportunity to excel unless you have the resources that is required to make sure to convert these opportunities. You have the resources, but these resources, if they are not accessible, if they are not readily available, or if they are not made available to the person who has been given the opportunity to develop, to come up in life, फिर वो किस मकसद का, मतलब क्या हो सकता है. अब देखिए आपके पास you have the accessible resources to convert these opportunity into a program wherein you develop. लेकिन ये सारी चीजें हैं, but if you do not have the insight, DORAI, insight in within, अगर देखने का नजरिया आपके पास नहीं है, अगर वो पर्सपेक्टिव, आपकी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं होगी, तो फिर ये सारी चीजें होकर भी कोई फायदा नहीं है. मतलब बेमतलब का होता है. When you cannot convert an opportunity, you have the resources, but you do not know how to make use, optimal utilization of these available resources which are there, and how to make them accessible. ये सारी चीजें होकर भी बेमतलब की रहती हैं जब आपके पास वो नजरिया नहीं होता. तो my cliche dialogue is नजरिया बदल डालो, नजारे बदल जाएंगे. So if you are able to convert that insight, अगर आपके अंदर वो देखने का नजरिया, जब आपका एटीट्यूड बदल जाता है, तो दुनिया की बहुत सारी चीजों को आप जब जिस तरह से देखते हैं वो बदल जाता है. जब वो बदल जाता है तो हर एक चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से लेके जाने में सक्षम हो जाते हैं. सो डेवलपमेंट के लिए आई की जरूरत है. तो ये सारा, जैसे आपने कहा है, एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच होता है कम्युनिटी में रिहैबिलिटेशन और एम्पावरमेंट लेकर आने के लिए. और आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि ये हर क्षेत्र में, अभी when we are talking about development, ये सोशल चेंज की बात करते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन लेकर आना वो हर क्षेत्र में जरूरी है. I am a special mother, but that will not limit me or restrict me only to the disability sector. बहुत सारे युवाओं के साथ हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे परिवर्तन लेकर आने का एक जो जिम्मा उठाया है. खास तौर पे we work with a lot of youth programs, बहुत करते हैं कश्मीर में, in the villages of Kashmir, and वो एक हमारा एक मिशन है. फिर हम काम करते हैं महिलाओं के साथ, हम जो सिंगल मदर्स हैं,
और जो विडोज हैं उनके साथ काम करते हैं, लड़कियों को पढ़ाने का, उनको बढ़ावा देने का, उनको सक्षम बनाने का। तो ये सारी, जैसे हमने अभी कहा कि हम यूपी होके आए, मिर्जापुर में औरतों के लिए एक सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, विद रिगार्ड टू उनकी जो देयर इज अ नीड बेस्ड एनालिसिस व्हिच इज डन एट द ग्रास रूट लेवल, एंड अकॉर्डिंगली जो चीजों की जरूरत है वहां पे वो प्रोवाइड करते हैं. So that facilitation happens, Right. you know, and that happens with the community, within the community, establishing leadership programs with that. मतलब आप जाते हैं and there's a hand holding exercise. तो इटू wherever we go, तो ऐसा नहीं कि दोरे फाउंडेशन का एक छापा डाल दिया है, ये हमारा ब्रांच है, ऐसा नहीं है. None of our outreach program has our name या हमारा मतलब बोर्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है. And very true to the, जैसे आपने कहा, very true to the spirit and philosophy of हमारे जो रेक्स के अवार्ड्स होते हैं, वो एक कैंडल को जलाने के बराबर होता है. और मैं हमेशा से ये मानते आई हूँ कि हमारी जिंदगी जो हम लोग सोशल चेंज, मैं कैटलिस्ट बोलती थी, मुझे बहुत साल पहले, मुझे लगता है इट्स ऑलमोस्ट 10 years, Jerry had corrected me in one of my Facebook comments that we are not change catalysts or agents. We are champions of social change. And thank you, Jerry, for adding this word, because it brought in not ego, but it brought in a different perspective कि हर बंदा अपने आप में जब वो इतना काम करके अपने आप को जब चैंपियन कहता है, वो चैंपियनशिप लीडरशिप में दूसरों को भी चैंपियंस बनाने का एक जिम्मा उठाता है. So like they say, with great power comes greater responsibility. So with that greater responsibility of being a champion, of carrying this jyoti, और ये कैंडल वैसा ही है, जला के रख दिया, जब जरूरत पड़ती है लोगों को, then we have this again programs that we do. Otherwise it's the community empowerment. वो community, वहां पे हम गए, प्रोग्राम किया, there is a people's participation program, वहां के लोगों को जागरूक किया, वहां पे चेतना लेकर आए, वहां पे चेंज जो जरूरत है वो लेकर आके you're hand holding, and then they are all established, or and then you're not needed anymore. I think that's when the true social change जो movement होता है, उसका सबसे बड़ा मुझे लगता है the parameter is when you are not, no news is good news. When in different projects, when they just call you for Diwali or Christmas or New Year and wish you, that is कि वो लोग सशक्त हैं और अच्छा चल रहे हैं और आपको उनकी जरूरत नहीं है. तो lighting that candle when there is that darkness that is required. Darkness is not in literal terms, yes, also in literal terms. Solar energy का project बहुत सारा किया हुआ है. But I think to try and create that positive thought process, वो mindset जब change करने का होता है, तो उसमें जब आपका रोल होता है, और एक बार change कर लिए तो that's fine. तो वो एक मीठे लड्डू या पेड़े की तरह होता है. आप ज्यादा भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि फिर डायबिटीज हो जाएगा. इसलिए जितना उतना आप दो, उसके बाद फिर आप निकल जाओ. And then just, you know, it's like, so Dore Foundation is more like, you know, वो जो जब साइकिल चलाता है कोई, इसको बिठाते हैं, साइकिल भी हम खरीद के देते हैं. तो when there are all these projects, तो like in Kashmir, just to give you an example, Kashmir में हम लोग ने for the women and for the half widows and for all the girls there, we started this वहाँ पे टेलरिंग उनको सेटअप करना था. Skill development. जी, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रदान करना था. एंड दे आल्सो वांटेड द रिसोर्सेज दैट हैड टू बी मेड अवेलेबल. तो हम वहां गए, एंड एक्चुअली आई वाज देयर टू बाय, मतलब सुंबल गए और वहां पे खरीदा, यू नो, जो, और हम लोग यहाँ सोचते हैं कि सिलाई मशीन अपने यहाँ ऐसे है ना, पैर में वो करने वाला है, पेडल वाला. वहां पे ऐसा नहीं, वो हाथ वाला उनको चाहिए. दैट्स हाउ दे, पुराना वाला. जी, वो हाथ में, आई मीन इवन द यंग गर्ल्स दे सिट एंड डू इट लाइक दिस. So इतनी सारी चीजें, so it has to be topical, it has to be regional, and it has to be need based. उनको क्या चाहिए, तो वो सारा चीज establish किया, and then set up the entire skill development का program की training provide किया, materials भी provide कर लिए कि क्या करना है. And after that they were over, they were fine. It's like, you know, cycling, साइकिल खरीद के दिया, बच्चे को बिठाया, उसको दोनों हाथ और पीछे भी पकड़ा, उसके बाद सामने का हाथ छोड़ा, फिर बाद में पीछे ऐसे पकड़ के रखा, उसके बाद उसको बोला कि तुम आगे जाओ, हम हैं. You know? अगर गिरोगे तो हम भाग के आएंगे, मतलब स्प्रिंट करके आएंगे, पर आपको बचा लेंगे. पर गिरना तो आपको है, सीखना तो है, क्योंकि हम गिर के स्मिता जी, आपने बहुत अच्छे से बोला कि आतुर होना बहुत इम्पोर्टेंट है,
you know, that inquisitiveness, that curiosity is very, very important to have amongst the community also, to be wanting to move forward. And when they are when they have that curiosity, you have to give them resources, and then they have to become resourceful. And then in all of this is very important if we bring insights or mindset shift, because that's only when the real shift will happen. You've touched upon a very beautiful point, second point, that is. And you know, you've spoken about champions of change. That's what we called, because you talk our language, and it's so beautiful to hear a Rex fellow talk about all the insights that we talk at the fellowship, being imbued, being you know, soaked in and talked about and practiced also. So thank you so much for that. Another thing that you spoke about, which is the need, which is the real need, and that's how it should be, that, you know, need-based models plus models of empowering the community, not just making them dependent on yourself or on what you're doing as a NGO or a non-governmental organization, but actually empowering them, that you create a model, you create something good and change for them, and then leave it for them to you know, make it good, and then go on to empower somewhere else. You can't stick and start making them dependent on you. Then it's bad for them, and it also brings a bad name for the NGO, because फिर आपका काम वो गैप फिल करना है, गैप को हमेशा से खुला रखना नहीं है, जो बहुत इंडिया में हो रहा है. What is your take on that? Because lots of NGOs say they are filling the gap, but what they do is let that gap be. मतलब वो जख्म को वही रहने दो, क्योंकि जख्म की मरहम करते रहेंगे तो हमारे को मरहम के लिए पैसा मिलता रहेगा, और हमें मरहम के लिए पैसा मिलता रहेगा तो हमारी नौकरी चलती रहेगी. It's become a business. What do you have to say about that? You have absolutely hit the bullseye. आपने जो कहा है बिल्कुल it's 100%, 200% आप बिल्कुल सही हैं. और ये इस तरह से जो चल रहा है ना, ये बहुत सारे जो मतलब हम भी देखते हैं. I've been in the field for a very long time now. और इतने सालों में बहुत सारे एनजीओज में हम लोग क्रिएट करते हैं. मतलब जैसे आपने कहा है कि go there and create, make them aware. बहुत लोग जैसे आदी हो जाते हैं. It is in psychology. I also come from a mental health background as a professional. We're going to go there also, yeah. तो वो एक there is a term that we say which is learned helplessness. तो दो चीजें हैं. आप as an activist, आपका ये कर्तव्य होता है कि आप वहां जाएं, उनको बताएं, इस चीज से उनको वाकिफ कराएं कि किस तरह से if they are going through, whether it is forum against domestic violence, or it is rehabilitation of commercial sex workers, or it is the transgenders who are working in the flesh trade. आप किसी भी अगर समस्या को देखो तो ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है. The focus should be कि आप उनको देख रहे हो, उनकी जो जरूरत है उसको समझ रहे हो, and then try and make that. मतलब जब वो आदमी बंदा आपस में उसको लगता रहेगा हाँ यार मेरा शोषण हो रहा है और मैं इस ये जो मेरा ये दायरा है, इस दायरे से मैं निकल सकता हूँ. So I am in a position to try and bring about changes in within myself and also on the outside. And when that concept is internalized into the system, when that is inculcated, whether it is an individual or whether it is a community where you know, in some remote village in Uttar Pradesh, I think that creation of that thing is very important. And telling them कि हर चीज का एक टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है. हम सब एक टाइमलाइन के साथ ही आते हैं, कभी पता नहीं कभी पत्ता कटेगा, एक्सपायरी डेट कभी है किसी को नहीं पता. तो उसी तरह से we need to have that concept. अगले को बताना है कि ये चेंजेस आपको लेकर आने हैं, ये चीजें आपके साथ होती है. डोंट बिलीव इन कि like you rightly said, ये डिपेंडेंसी रेशियो जो हम लोगों का बहुत सारा बढ़ता है ना, कि वो आते हैं वो फंड देंगे तभी फिर हमारा काम चलेगा. मतलब इफ दे गिव तो वो नहीं देंगे तो मान लो वो एनजीओ वो फाउंडर वो लोग मर गए
या कुछ हो गया उनका, अभी कितने सारे एनजीओज हैं जिनके एफसीआरए बंद हो गए, जिनके ग्रांट बंद हो गए, सारा कुछ हो गया। मतलब क्या करोगे यार? तो क्या काम बंद करके, दुकान बंद करके बैठोगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिजनेस, ये दुकान हो गया, तो दुकान बंद, तो फिर उसको कपड़ा नहीं दोगे, उसको फिर वो सिलाई नहीं करेगी। तो वो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट दैट। ये तभी हो पाएगा जब हर चीज को, ये जो सामाजिक मुद्दों से जूझने का, ये परिवर्तन लेकर आने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, ये इस क्षेत्र में ये बिजनेस नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये, इफ यू आर गोइंग टू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि अच्छा मैं यहाँ पे करेगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं यार, नोबडी नोज, नोबडी इज ऐसा, ऑल ऑफ अस आर डिस्पेंसिबल। तो कल को तुम्हारा हो जाएगा, उसको तो सशक्त करें। वी नीड टू टेल एंड मेक बिल्ड अबाउट लिंकेजेस। जब वो लिंकेजेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं उसको, तो वो अभी उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। नोबडी इज कॉलिंग अस, नोबडी से, उनका अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो अपना सिलाती है, वेदर शी स्टिचिंग, वो सिलाई अपना बगल वाले के लिए कुर्ता सिलाती है या ब्लाउज सिलाती है या झब्बा सिलाती है, वो सिला के अपने आप में खुश है। शी इज नॉट डिपेंडेंट कि अरे दोरे फाउंडेशन से हाँ सुमित्रा दीदी आएंगी ना, फिर वो लेकर आएंगी ना, फिर वो करेंगी ना। नहीं, हम करेंगे, वो अलग बात है, दैट विल बी डिफरेंट, बट यू विल नॉट डिपेंड। सो देन वेयर इज द लाइवलीहुड? फिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम बोल के साला इतना हम लोग लोग यूएनडीपी एंड मिलेनियम गोल्स की बात करते हैं, तो कहाँ लेकर आते हो यार? कहाँ करते हो? स्किल डेवलप, आप बहुत सारे, आई मीन आई विल वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड, आधे से ज्यादा लोग मुझे एक बार बुलाते हैं, दूसरी बार बुलाते नहीं है, बिकॉज दे थिंक कि यार ये कुछ भी बोल देती है। एंड देर आर फ्यू ऑफ माई कॉलीग्स इन द सेक्टर हु विल से, सुमी तुम आके कुछ भी बोल जाती हो, यू गेट अवे विथ एनीथिंग, आप बोल के निकल जाती हो एक्टिविस्ट, फिर हमको रहना पड़ता है यहाँ पे, और हम लोगों को इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करना पड़ता है, बिकॉज तुम दोरे फाउंडेशन के लिए कोई ग्रांट या फंड्स नहीं लेती हो सरकार से, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट है। पर ये डिपेंडेंट होना, ये ग्रांट वो मेहरबानी नहीं करता यार। अगर सरकार तुमको कुछ पैसे देती है चलाने के लिए, वो डिपार्टमेंट है, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट का है, वो काम वहां पे उसको दिया जाता है, उसको दिया जाता है बकायदा। तुम जिस जिस दिन हम लोग, ये जो सेक्टर है सोशल सेक्टर, वो अपने आप को, ये ऐसा ना चैरिटी मॉडल, ऐसा यार मैं इसको खुश रखना चाहिए, मैं उसको खुश रखना चाहिए, ये खुश रखने के चक्कर में ना ये बाबूगिरी बहुत ज्यादा बढ़ता है, and I don't think that NGOs have to be, हाँ अच्छा they are coming for inspection, अरे सब क्लैरिटी रखो ना, ट्रांसपेरेंसी रखो, है ना? अकाउंटिंग में सारी चीजें, यू आर देयर इन दी ओपन। सोशल ऑडिट कोई भी आके करके लाए, मतलब बोलते हैं ना, कोई भी माइके लाल आके पूछे क्या कर रहा है, ये सब अकाउंट साफ है। जब अकाउंट साफ है तो क्यों बाबूगिरी के साथ आपको वो ऐसा हाँ हुजूरी करना है? सो दिस, इट इज वेरी सैड। बहुत लोग, नो यू कांट, वी विल आपको, हमें बकायदा बुलाया नहीं जाता है। आई डोंट, मेरे को तो रंजिश ही नहीं है, बिकॉज अपना अलग सा जो चलता है वो चलता है। मतलब तुम्हारे उस सेमिनार में जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सारे लोग होंगे, वहीं पे आकर मेरा एक एज अ रिसोर्स पर्सन, मेरे आने से मेरे को कोई, आई डिड रादर गो टू वन कम्युनिटी जहाँ पे मेरी जरूरत है, ना कि यहाँ पे सिर्फ वो 10 नामों में मेरा नाम ऐड करने के अपने को कोई जरूरत नहीं है। पर ये ऐसा होता है क्योंकि आपको लगता है, आपके ऐसे बर्ताव से, ये जितने सारे, बहुत सारे एनजीओस के ऐसे बर्ताव की वजह से, ये बाबू लोग जो बाकी ग्रांट और ये सब देते हैं ना, ये उनका बहुत वो सर चढ़ा एटीट्यूड हो जाता है। Very well said. And you again talk our language. And Jerry के दो articles जो business world में भी छपे, and he's written 2 articles about the lip service about charity and ethics and code of an activist. He'll talk about them in greater detail, linking to what you were saying, and very rightly said. आपने सशक्तिकरण की बात करी, giving them true empowerment and creating leaders, and that's what we talk of at Rex Karamvi, that the true evolving and empowerment is in creating leaders, not creating dependency. And leaders create leaders. So that model has to be everywhere. But unfortunately, it is not the norm in the social development sector, which is sad. But that's where people like you or people at Rex Karamvi, you need to call out the wrong. You need to call out people that, this is not correct. This can't be done.
this is wrong. So that's why one of our slug lines, right every wrong. And good, we're really happy to know that, you know, somebody has that josh and strength to speak, because that's also one of our fundamental rights. Absolutely. Right to speech. We should be able to speak against the wrong. And actually what is happening in the country, we know that it's so important to speak about the wrong that is happening in the country as we sit the farmers bill, etc. etc. बिल्कुल बिल्कुल everything जैसे जैसे आपने कहा, absolutely. I mean, and there is another genre of, you know, thanks to lockdown, there is another segment of activism which has come into the social sector, and that is like, you know, ऐसा tabletop journalism, tabletop photography होता है, वैसे tabletop social activism और change ऐसा सब आने लग गया है. Just to give you an example, कि लोग जब कहते हैं ना कि हाँ इसके खिलाफ, people now think that by changing your DP into say कहीं पे कुछ हो गया है, अब एक फार्मर का डाल दिया आपने, तो आपको लगता है आपका काम वहीं शुरू हो गया और वहीं खत्म हो गया. तो by just, you know, कि आपने फिर वो एक कैंडल एक ऐसा वो कर दिया, तो फिर, you know, it's that mission accomplished. मतलब आपको लगता है, like we call, again going back to psychology, we call it partial gratification. तो आपका एक DP change करने से, I mean, of course that's one step towards trying to create whatever change that you want to bring. Yeah. But having said that, I think ये जैसे किसी का अगर बच्चे का कुछ वहां पे मोलेस्टेशन हो रहा है, रेप होता है, तो मुझे, I mean, I am talking from a absolute grassroots level worker category. अपन अपने आप को काम करने वाले लोग हैं, मतलब वो कोयले के खान में अपन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वैसा भी रंग सांवला है और भी काले होके आते हैं. तो this is the modus operandi of work, चाहे वो कहीं पर भी हो, whether it is like मैंने कहा ना, अभी ये प्रॉब्लम निवार का हुआ था तो सब लोग सैड, ओके बेस्ट विशेस और निवार का कुछ फोटो डालेंगे. अपन काम करके आए, चाहे वो नेपाल में अर्थक्वेक हो या कश्मीर में फ्लड्स हो या केरला में हो, वहां जाके being there, be the change you want to see ना, so be there to bring about, be there to do it. मतलब जो काम करने वाला है वो अगर आप काम करो ना, फिर वो मायने रखता है. तो ये डीपी आपने चेंज नहीं किया, आपने इसके बारे में बात नहीं किया, आपने उसके बारे में बात नहीं किया करके बहुत लोग ऐसा ज्ञान बांटते रहते हैं. दे विल टेल मी. हाँ, बट उसकी भी सोशल मीडिया की जो यूसेज है और जो पावर है उसको राइट डायरेक्शन में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू आर राइट, देयर इज अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु डू इट जस्ट टू show that I'm doing it and I'm an activist, but some people really want to bring a change, and it is in that direction to talk about the topics which are difficult, sensitive, not spoken, hushed about, put under the carpet, and to be able to talk about them with the fervor and no fear is also very important, because all said and done, people are on the social media. The social media has that power. So to be discerning, to be able to use that power is very important. We need to be very discerning of, I lost you, Sumitra ji. Yes. So that's also very important. Sumitra ji, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि action is very important. बोलना तो बहुत आसान है और हर कोई बोल सकता है, और आजकल तो हर कोई हीरो बन जाता है, हीरोइन बन जाता है, मॉडल बन जाता है, एक्टिविस्ट बन जाता है. यू जस्ट हैव टू स्विच ऑन द लाइव बटन ऑफ सोशल मीडिया, ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया, और आप कुछ भी बोलो, और जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं और उनको लोग सुनने वाले भी हैं और फिर उनका माइंड चेंज करने वाले भी हैं. इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी ये काम कर रहे हैं. उन्होंने एक पूरी एजेंसी लगाई हुई है कि लोगों का दिमाग चेंज करो, बस बोलते जाओ, उनमें से कोई तो सुनेगा, और जितने सुनेंगे वो ही उतने ही बहुत है हमारे लिए. So that is also very important, and our slug line at Rex Karamveer is not just talks, ideas for action, and that is why people like you and people who really show work at the grassroots level, जिनको फोटो दिखाने की, अपना किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपना grassroots में काम कर रहे हैं, and that is why we are so
happy to see people like you who come on this platform who are unsung heroes, who have nothing to gain but only work to do. So thank you so much for that. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जी कि आपने बोला आप कश्मीर में काम करते हैं, कश्मीर क्यों चुना आपने? एक्चुअली कश्मीर सारे जगह पे काम करते हैं, हाँ, बट कश्मीर पर से बहुत बहुत काम की जरूरत है, जहाँ पे नीड है वहीं पे जाके काम करेंगे ना। जैसे उसके बारे में बताइए। जरूरत तो बहुत सारी है एट द ग्रास रूट लेवल में। आपको अगर आप देखेंगे युवा पीढ़ी है, वहां के बच्चे स्कूल्स आधे टाइम, अभी तो थैंक गॉड, मतलब ये बात ऑन रिकॉर्ड, आई एम परहैप्स वन ऑफ दोज, मैं इतनी खुश हो गई थी, आई थिंक नोबडी वुड हैव बीन, मुझे नहीं लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुश हुए रहेंगे या हमारे होम मिनिस्टर खुश होंगे, पर मुझे लगता है पर्सनली मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ रहेगा जब आर्टिकल, जब हमने कश्मीर को हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाया। क्योंकि हम जब काम करते थे तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज यहाँ पे जो जरूरत, जितना पैसा हम लोग वहाँ के सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो जायज है और लाजम है, अगर उतना पैसा उसमें से आधा या क्वार्टर या उसमें से 10% भी अगर हम लोग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अगर करते, अगर एजुकेशन के क्षेत्र में करते, अगर यूथ डेवलपमेंट के इसमें करते, तो मुझे नहीं लगता है कि हमको इतना सारा पंगा होता और जो ये लॉयल्टी का इशू है वो इतना होता ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि इतना सारा ओके, लेट मी टेल यू, 2004 मतलब 16 साल पहले, जब 6 साल पहले जब हमारा वहां पे 14 में बाढ़ हुआ था, तो वी आर वन ऑफ दोज, हमारे एम्बुलेंस में पत्थर फेंके थे उन्होंने। हम लोग जातपुरा करके एक जगह पे गए थे। लोगों को दिल में जब आक्रोश होता है, जब लोग आपको गलत नजरिए से देखते हैं, व्हेन पीपल मिस्टेक यू टू बी समथिंग एल्स, everybody is judgmental, but when there is a community, when there is a state, when there is a section of population that is looking, again it's called cross group recognition, आप किसी एक सेक्शन को एक कोई नजरिए से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है कि it is important for you to believe that if you're not that, you're not someone who is जो उसको हावी होना चाहता है, जो उसको कब्जा करना चाहता है, वो नहीं है। हम लोग ने कभी, तुम कोई बाहर के हो ही नहीं कि तुमको हम हड़पना चाहते, यू आर पार्ट ऑफ अस यार, मतलब है ना, मेरा पूरा अंग का एक हिस्सा हो तुम। तो ये आंख दूसरे आंख को थोड़ी बोलेगा कि यार मैं तुमको अपने अंदर लेना चाहता हूँ, ऐसे थोड़ी है। एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम इट्स सम ऑफ द पार्ट इज मेक्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो होल इज बेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स करके एक थियरी है साइकोलॉजी में। तो ये, और वो जरूरत थी वहां पे, और जरूरत अभी भी है वहां पे। आप युवा पीढ़ी के साथ देखिएगा, वहां पे एजुकेशन के क्षेत्र में हम वहां पे गए हैं, काम किए हैं, वहां पे जाके जो परिवर्तन लेकर आना है, whatever things that are required, even resources, when we're talking about bringing about change, it is also bringing in the mindset change है, और वहां पे जो चीजों की जरूरत है वो जब आप प्रोवाइड करते हैं, then people believe you, and this is what I go keep talking to them, whether it is going to पुलवामा, जहां पे पिछले साल ही जब आतंकवादी हमला हुआ था, उसी गांव में हम गए थे 1 महीने के रेंज में, 18th of April last year। अगेन यू सेड ना कि निडर होके जाना चाहिए, डर के आगे जीत है। तो 18 अप्रैल 2019 दैट वाज द इलेक्शन डेट, जब हमने वहां पे प्रोग्राम तय किया था फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। वहां पे हमारा कैंप था, उड़ान कैंप, इट्स अ यूथ एम्पावरमेंट कैंप फॉर द डिफरेंटली एबल्ड। तो तभी प्लान किया था ना, तभी वो डेट नहीं आया था, इलेक्शन के डेट तय नहीं हुए थे। तो जब तय हुए थे तो एवरीबडी इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, एवरीबडी एट होम एंड एवरीवन अराउंड वर एप्रीहेंसिव कि यार इलेक्शन हो रहा है। और उसी दिन आप वहां पे 17 को हम गए थे वहां, और उसी दिन आप वहां पे कैंप रख रहे हो, व्हाट इज दिस, एंड यू नो एवरीवन वाज एप्रीहेंसिव, एंड उनके दिल में थोड़ा सा डर भी था। पर कुछ अलग करने के लिए ना वो पागलपंती होना जरूरी है। एंड आई नो दिस माइट साउंड वेरी फिल्मी, पर बोलते हैं ना बाहर निकलते हैं तो सर पे वो ऐसा कफन बांध के निकलते हैं ना,
तो उस जमाने में ही आपको भगत सिंह की जरूरत है वैसा नहीं है। आपको आज भी भगत सिंह का जज्बा लेके आगे चलना है। जब यूपी बिहार जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो इसी जज्बे के साथ जाते हैं। जब कश्मीर जाके काम करते हैं, तो इसी ये जो टिक्का ऐसा डाल के ही मैं जाती हूँ। चाहे कभी एक एक गांव में हमको वो पहनना पड़ता है, बुर्का नहीं पहनते, लेकिन आई विल बी वेयरिंग माय दुपट्टा, वो पहन के हम जाएंगे, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं। आई विल रिस्पेक्ट वहां के, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम डर के वहां जा रहे हैं। हम वहां अगर परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, तो वी हैव टू टेक दैट पॉजिटिविटी, वी हैव टू टेक दैट assertiveness, not aggressiveness, but assertiveness लेके वहां जाएंगे, तभी वो चेंज हो पाया है। टुडे वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लाइक आई सेड, वहां पे उसी दिन हमने कैंप किया था, एंड बिलीव मी 17 कैंप्स कर चुके हैं हम ये डिफरेंटली एबल्ड का। और सबसे ज्यादा टर्नआउट वहां पे श्रीनगर में बेमना करके एक जगह है, शफाकत अली वो स्कूल में, वहां पे सबसे ज्यादा हुआ, 115 लोग डिफरेंटली एबल्ड। कैन यू इमेजिन? वो लोग आए थे। मतलब पीपल विल बिलीव इन यू व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब आपके अंदर जो होता है ना, ये सिर्फ वो लिप सर्विस, जैसे जेरी ने कहा, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वो जब निकलता है वो रूह से निकलता है यार। वो कुछ ऐसा प्लान करके आज ये करना है, आज ये बोलना है, इनको इंस्पायर करना है, या इनको, वो नहीं है। जब वो देखते हैं कि हम चेन्नई से, हमारा कोई कोई है नहीं, देयर इज नथिंग वहां पे, हमको जाके कुछ मिलने नहीं वाला है, अपना ही पैसा खर्चा करके अपन उधर जाते हैं। तो इट इज नॉट कि वो लोग कुछ करने वाले हैं, एवरीथिंग लाइक आई सेड ना, सब अपना ही खर्चा पानी है। तो दे नो कि आपने बात की, उसको हम रेक्स में जुनून बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आई कीप सेइंग ना कि जोश और जुनून से अगर काम करेंगे ना, तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। पर ये जो आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ये इंक्लूजन और ये थॉट और ये माइंडसेट शिफ्ट तो नॉर्थ ईस्ट में भी चाहिए, माओइस्ट एरियाज में भी चाहिए। ये तभी इंक्लूजन आएगा। दैट इंक्लूजन into the mainstream is very very important, isn't it? जी बिल्कुल। What's your take on that? एब्सोल्युटली, हर जगह पे एक्चुअली बारिश की वजह से वो हो गया हमारा इम्फाल। हमारा काम विद द टीजी कम्युनिटी वहां पर भी होता है, मणिपुर में होता है, एंड वी डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर आल्सो। तो ये चेंज लेकर आने की, आप इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन ऑन सोसाइटियल लेवल, जो सोसाइटल स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है, जो अलग अलग सेगमेंट, उनको एक करना बहुत जरूरी है। एंड टू टेल यू कि ये नॉर्थ ईस्ट के इस बार जो हमने काम किया था उन लोगों के साथ ड्यूरिंग कोविड, बहुत ही बड़े पैमाने पे हमारा काम हुआ। बताइए, टेल मी अबाउट दैट। जी बिल्कुल। तो दिस टाइम दो वी वर हियर, in fact I am perhaps one of the happiest persons again, because 2020 was perhaps the best year for Dore Foundation. जितने कार्यक्रम हम लोगों ने किया और जितने स्टेट्स में हमारा कोविड का जो काम चला है, 18 जो राज्यों में काम चला है कोविड का, सारे रिलीफ ऑपरेशंस हमारे हुए हैं। और ये तभी हो पाया है, जैसे हम कहते हैं ना, तनीमरम, इन तमिल देश से तनीमरम तोपागद, मतलब एक ट्री से आपको जंगल नहीं बनेगा। जंगल तब बनता है जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे ट्रीज इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो बीइंग अ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे बड़ा हमारा एक प्लस पॉइंट है कि डॉन के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। सो इट इज लाइक वी ब्रांच आउट लाइक दिस। हमारा ग्रोथ डीएफ का ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं बढ़ते हैं, हम लोग ऐसे चौड़े बढ़ते हैं। लकीली वेस्ट लाइन ऐसा नहीं बढ़ता है, इसीलिए मैं खुश हूँ, पर बाकी हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो वी आर एबल टू कम्युनिकेट एंड रीच आउट टू वेरियस प्लेसेस। मतलब वो आसाम के टी एस्टेट में जो काम करने वाले लोग जिनकी नौकरी चली गई है, वहां पे किया हुआ है। लद्दाख में जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग का जो एक टीम है, उनको मास्क मेकिंग, 1000 मास्क वहां पे बना के वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो अलग अलग, मतलब जयपुर, आप you name it, and we have worked with all this. आप जो inclusion की बात करते हैं, तो we have been able to cater to all these segments, जो हमारे disability based families हैं, हमारे transgender community हैं, हमारे commercial sex workers जो हैं। तो जो आस्था एक हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मुंबई में काम किया था, roughly reaching out to over 300 families of commercial sex workers. तो वो एक सेगमेंट हुआ है। फिर नॉर्थ ईस्ट जो जितने भी
हमारे माइग्रेंट्स हैं उनके साथ हमने काम किया है। एंड ऑन रिकॉर्ड हमारे, आई विल टेल यू, ये मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था तो सब लिख के रखा हुआ है। तो हमारा जो रेस्क्यू मिशन है, जैसे हम कहते हैं ना कि every disaster management program has 3 R's to cater to. There is rescue, relief and rehabilitation. And Dore Foundation works on all these 3 areas. तो rescue के अंतर्गत जितने migrants यहाँ से अपने घर वापसी हुए हैं वो 613 हुए हैं, who were here in Tamil Nadu, यहाँ पे जो आ गए थे from UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal. और then we talk about relief mission 61,498, ये हमारा आंकड़ा है जिनको पहुंचा गया था, like I said, across from being a partner with NIT in Srinagar, National Institute for Technology जो श्रीनगर में है, वहाँ पे वो क्वारंटाइन सेंटर करके तब्दील हुआ था। और हमारा काम अगेन पिछले लगभग 5 सालों से हमारा टाई अप है NIT के साथ। वहां जाके ये यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हमेशा होता है, ब्रिंगिंग इन सोशल कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा थीम होता है कॉलेजेस में जाके काम करने का। एंड रिहैब जो है, अभी रिहैबिलिटेशन में जो उनको सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो छोटे छोटे उनको लघु उद्योग बोलते हैं, तो घर पे बैठ के होम बेस्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए, चाहे वो चाय की दुकान के लिए बनाना हो या उनको रिहैब के लिए उनका घर पूरा उजड़ गया हो, पानी में बहुत सारा, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो वो रिहैब के लिए 753 17 स्टेट्स, तो ये सारा हुआ है। एंड वी केटर्ड एक्सक्लूसिवली विथ ऑल दी, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो थे, तो नॉर्थ ईस्ट जो पूरे कम्युनिटी थी यहाँ पे, उनके लिए हम लोगों ने काम किया, उनको पूरा रिलीफ मिशन पहुंचाया गया, बिकॉज दे आर डाउन हियर। उनको आधार या देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो सिर्फ अपने बंदों को अपने लोगों को देती थी, उनको नहीं दिया था। तो जैसे आपने कहा इंक्लूजन, ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ये bringing everybody into the fold. And on the same note, I would like to add कि जो श्रीनिवास प्रसाद को जिस इससे दिया गया था पिछले साल, और जो हम लोग सेंटर चलाते हैं नेबरहुड इनिशिएटिव फॉर एडल्ट्स विद स्पेशल नीड्स, उसका नाम साई सेंटर है। एंड साई ऑफ कोर्स उन्होंने नाम रखा है, मेरे बेटे ने, लेकिन वो भी एक एक्रोनिम बन गया। उसका वो एब्रिविएशन है, इट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑल इंक्लूसिव, जहाँ पे सभी लोगों को, एंड वी बिलीव इन बीइंग समावेशी होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस लॉकडाउन के वक्त हम लोगों ने इंक्लूसिव फेस्ट, हमारा एक फेस्ट होता है इंक्लूसिव फेस्ट जिसको जश्न जिंदगी कहते हैं, वो हमने सब स्टेट्स में, हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने कवर किया है। एंड वी हैड ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम्स केटरिंग टू हेल्थ अगेन across the country, sabhi sare muddon par. Absolutely brilliant, Sumitra ji. More power to you, and keep doing what you're doing. Keep ascending new heights and keep touching people's lives the way you have been doing. Thank you so much. I'm wanting to ask you, you talk about education beyond classroom in grassroots. Tell me something about this part, because it's very, very important, especially in this times, because due to COVID, people in the urban areas, elite schools, everybody's been affected. I'm wanting to know what's, the effect on the grassroots must have been too much. So tell me about that, and also tell me about this concept that you have. हाँ, ये दो चीजें हैं जैसे आपने कहा। सो there's something that recently we got to know about our contribution. I mean, of course, कुछ साल पहले भी जब वो एक अवार्ड पे बताया था, बेस्ट टीचर अवार्ड, तो मैंने कहा मैं कहीं एक जमाने में पढ़ाती थी, आई यूज्ड टू टीच इन भवंस कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म पढ़ाते थे। हमारा बैकग्राउंड मीडिया से भी है, तो वो हम करते थे। तो अभी बियॉन्ड द क्लासरूम सेटअप, ये बियॉन्ड क्लासरूम सेटअप का दो एरियाज ऑफ एंगेजमेंट है। एक वो है जो हम लोग स्टूडेंट्स को, अभी आपने कोविड कहा है तो मैं कोविड ग्रासरूट लेवल में बता देती हूँ, उसके बाद जो बड़ा पिक्चर है वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये अभी क्लासरूम जैसे गांव में अगर जाएं और बाकी सब एरिया में हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो ये जो बहुत सारे हैं,
इन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब कोई औरतों के लिए है, लड़कियों के लिए है, फिर जो काम करती हैं, सिलाई बुनाई करती हैं, उनका अलग अलग ग्रुप है जो हमने सेटअप किया है। उनके बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी लॉकडाउन में उनके पास, जैसे बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस, मुझे बताना कितने लोगों के पास मोबाइल्स हैं जो वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ट्रू। हमसे जो बन पाया, हम लोग कलेक्ट करके हम लोगों को बोलते हैं कि यार आपके पास अगर मोबाइल हो तो फिर वो प्लीज किसी जैसे मेड है या कोई है डोमेस्टिक वर्क में जो काम करती है, उनके बच्चों को देना ताकि वो ऑनलाइन क्लास कर सके। पर यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इटू उनके पास अभी मोबाइल दे दिया यार, उनके पास वो डेटा भी वो करना है, रिचार्ज करना है, अब उनके पास वो तो नहीं है। तो हम लोग, मतलब आप एक वो देते हैं, इट्स लाइक यू राइटली सेड ना, कि आप उनको फिशिंग रॉड दे देते हैं, लेकिन अगर मैंने फिशिंग रॉड दे दिया लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कैसे बेट लगाना है, कैसे उसमें वो नहीं दिया, तो फिर क्या फायदा, फिर उसका मतलब ही नहीं होगा। तो उसी तरह से फिर इनको रिचार्ज, फिर लड़कों को बोलते हैं, फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं अपने लिए, हुआ वर्किंग फ्रॉम होम, उनको बोलते हैं कि भाई इनको ये दिया हुआ है कि इनका रिचार्ज है, जब महीने का ज्यादा नहीं है कि 150-200 रुपए, तो अगर तुम अगर कर सकते हो तो ये अगर काम कर लो तो उनका बेड़ा पार होगा। तो यू नो दिस इज अगेन, तो ये सपोर्ट सर्विसेज अगर हम लोग सब, ईच वन ऑफ अस कैन डू, पुराना फोन लेके वो दे दो, और फिर ज्यादा नहीं करना है रिचार्ज। अगर अपन बहुत बड़े ऐसे एनजीओ को 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, जैसे एक लोग ना एनजीओ फोन करके बोलते हैं, ग्रीन पीस है, ये है, क्राई है, कि 500 रुपया दो ये होगा, हम कहते हैं वो भी अच्छी बात है, जिसके पास पैसा है तो प्लीज दीजिएगा, नहीं तो ये 200 रुपया मुझे भी मत देना, डोंट इवन गिव इट टू, डोंट राउट एनीथिंग थ्रू दौरे फाउंडेशन, आपको नहीं देना है, नो इश्यूज, आप डायरेक्टली, हम आपको बताते हैं इस बच्चे का है, ये नंबर है, इस बच्चे को आप कर देना, यू कैन, या ये महिला है, ये महिला का जो है वो बच्चों को, उसका प्लीज रिचार्ज कर देना, मतलब यू आर एम्पावरिंग अ वुमन इन दिस थिंग, तो 150 रुपए का 139 149 ये कर दो। तो ये जो अगर करेंगे ना, तो आप यू गो एम्पावरमेंट ऑन ऑन अ कॉग्निटिव लेवल, वो अगला समझता है कि मैं आई विल बी एबल टू अगेन कॉग्निटिवली बेटर माई सेल्फ इफ आई एम गिवन दैट रिसोर्सेज। तो बच्चों को ये हम लोग ये एक बीड़ा उठाया बहुत सारे, so this is one area of work that we are doing, and which I think most of my colleagues are also doing, in different हर एक का अपना अपना लेवल पे, we all do it according to our capacity, यथाशक्ति जिसको संस्कृत में बोलते हैं, अपने से जो बन पड़ा है हम करते हैं, there's so much more to do, miles to go, more hearts and lives to touch. I will just stress upon the other point, beyond classrooms. हाँ, ये बियॉन्ड क्लासरूम्स का इज दी आई, DORAI इनसाइट जो है, तो हम लोगों के यहाँ जैसे मैंने कहा, वी हैव इंटर्नशिप प्रोग्राम्स फॉर ऑल, आई मीन वीव गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम B schools, वीव गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, वीव गॉट स्टूडेंट्स, मतलब अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के MBA स्टूडेंट्स 2 हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड देन वी हैव बाहर मुल्कों से भी आते हैं, एंड दे डू इट, US होने दो, जर्मनी होने दो, अलग अलग देश से आते हैं लोग यहाँ पे आके, अभी वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, सोशल वर्क का स्टूडेंट है, नाउ दे आर ऑल डूइंग देयर एकेडमिक्स एंड थ्योरी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, फ्रॉम देयर फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ आके क्या सीखते हैं, तो ये कनेक्टिविटी जो यहाँ से उनको हैंड्स ऑन मिलता है फॉर सोशल चेंज, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म, अपने पैमाने पे जो भी छोटा सा, वो जो कर पाने की उनके अंदर हम लोग उनको इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, ये जो है that is beyond classroom. Other volunteers as interns, and of course we have hordes of volunteers. जैसे मैंने कहा, मुझे आने में बच्चे सारे नीचे थे, there were about 18 of us, 20 लोगों के लिए मैं चाय बना के अभी सबको सर्व करके, we had a cake cutting ceremony also of one of our youth leaders, and जैसे आपने कहा we create leaders, ये कम्युनिटी में लीडर्स को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल हम नहीं रहेंगे, आई मीन आई एम गॉन, मेरा चैप्टर नहीं है, वहां पे जो है व्हेन वी डेवलप दैट लीडरशिप प्रोग्राम, जब बियॉन्ड क्लासरूम, जब वो एक रोल मॉडल बन जाता है, दैट इज अ पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी द अदर्स कैन रिलेट टू, दे कैन एसोसिएट विद। मेरे साथ एसोसिएट नहीं होगा, वो बोलेंगे यार ये बम्बई में है, ये वहां पढ़ी है, शी इज डन हर
मास्टर्स किया, ये किया है, तो मेरे साथ नहीं जुड़ पाएंगे जितना वही कम्युनिटी का जो एक बंदा है उसके साथ उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ एसोसिएशन है। तो ये जब क्रिएट करते हैं, और ये किसी क्लासरूम में बैठ के या कोई हम लोग क्या बोलते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स या ये सारी चीजें नहीं है, ये हैंड्स ऑन उनको ट्रेनिंग प्रदान करके उनके साथ रह के ये सारे वॉलंटियर्स आते हैं। वी हैव ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर देम। अभी जस्ट आने के पहले उनके लिए ओरिएंटेशन एक किया था, तो वो जाके दे बिकम दी टॉर्च बेयरर्स कि अरे आज मैं यहाँ गया था, मैं आज दौरे फाउंडेशन गया था और मैंने साई सेंटर में देखा। और जो भी आते हैं, अगर आपने साई सेंटर हमारा जो पेज है आज इमीडिएटली उनको हम लोग हमारा बनाया हुआ आपने देखा होगा, पिछले साल हम बहुत सारा हैंडमेड कार्ड्स लेकर आए थे सबको देने के लिए। यस यस। तो इसी तरह से हम लैमिनेशन उनको देते हैं, सब बना के हमारे जो ग्रुप है वो लोग बना के देते हैं और उनको बोलते हैं ये आपको रखना है। जिस तरह से ये गमले में फूल अलग अलग नजर आते हैं आपको, एंड एवरीथिंग इज ऑफ डिफरेंट शेप, दे आर नॉट कट, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, दैट इज हाउ द सोसाइटी इज। इट इज नॉट, इसको इक्विटेबल हमको बनाना है। हम ये नहीं कहते कि सभी लोगों को एक लेवल में देना है, दैट इज नॉट, ये इक्वालिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं कि किसी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसी को कम जरूरत पड़ती है, किसी का, तभी वो एक लेवल पे होगा, है ना। जो व्हीलचेयर वाला है उसको उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और जो छोटे हैं उनको जरा ऊपर होना चाहिए। जो साहित्य जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम ADHD है, उसका हाइट है, उसको कोई जरूरत नहीं है, वी डोंट आस्क यू टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर हिम। तो ये जो कॉन्सेप्ट उनको दिया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ना जो यंगस्टर्स होते हैं उनको लगता है सोशल कॉन्शियसनेस मतलब जाके कुछ सोशल काम कर दिया, कुछ पैसे दे दिए, वो दे दिया, यू नो। आई थिंक दे, फॉर देम बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिगिंस एंड एंड्स देयर। या कोई कॉर्पोरेट फर्म में जब काम करते हैं, CSR के नाम पे उनका इतना कटता है, कोई एक दिन फलाना दिन कट जाता है, पावर ऑफ वन दे कॉल इट दैट डे, एंड दे गिव इन दैट, and then they think it is done. So that's the concept. One of the articles of Jerry is all about that. You know, you feel आपने अपना guilt wash कर दिया, जी बिल्कुल ये कर दिया, and very beautifully said Sumitra ji, joy of giving. We you know, the joy of giving movement was started by Jerry, so we espouse that in a big way, that you know how joy of giving can really bring a lot of joy truly in your life, which material things can't bring. And also second thing that you touched upon, which we talk a lot about, is creating a legacy that you and I are not going to live, but you know, creating a better world for, even if for no one else, for your own children to come into this world. So create a better world, create legacies, and imagine if each one of us was volunteering. We are 7.5 billion people. If half of them was also volunteering, and volunteering in itself is a leadership course, it's a leadership lessons. So if that was happening, then the world would have been a better place. So this awareness and this shift in the mindset is very important, and glad you're bringing it to the young students as well. And I'll have a word with you on the students on another level later. My last question before I call Jerry in, because we're running out of time, is that, you know, Sumitra ji, you got a social documentary on your name, you've been written in the Karma Kari book, you have hordes on awards. I can't even go on to start reading about them and talking about them. There are hordes of them. What do awards mean to you? That's my last question before I call Jerry in. It's like with great power comes great responsibility. जितना ज़्यादा ऐसा मिलता है वो और खुश है. So the family is also happy, na? I mean, I have a daughter who's also in the sector. I have my mother who is 85 years old, और husband है जो who's the main sponsor of Dore Foundation. तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम काम करते हैं, पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं है, तो जब ये अवार्ड्स यहाँ वहाँ मिल जाते हैं, तो ये जब घर पे लेके जाके ऐसे फिर ऐसे दिखाते हैं, ये देखो ये मिला, तो दिखावे के लिए नहीं, पर वो खुश हो जाते हैं कि कुछ नहीं मिला. तो लाइक यू राइटली सेड कि आई टेल माय डॉटर, बहुत सारी चीजें हम नहीं पहनते हैं, जैसे गोल्ड नहीं पहनते, सिल्क नहीं पहनते, लेदर नहीं पहनते, बहुत सारी चीजों का हम परित्याग करते हैं. सो आई बिलीव इन लिविंग दैट, यू नो, एवरी ईयर फॉर लास्ट 20 years. आई जस्ट वांट टू शेयर दिस पर्सनल नोट कि मैं हर पिछले 2000 से मेरी जो फेवरेट चीज है, वो चाहे पनीर हो, बैंगन हो, लस्सी हो, पान हो, फ्रूट एंड नट हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर साल मैं सैक्रिफाइस करती हूँ. हाँ जी, आई एब्सटेन एब्सोल्युटली, मतलब वो
नहीं तो नहीं, ऐसा। That's called power of temperance, and we at Rex Karamveer and Mojo Inspirator talk of that power of temperance and how, you know, sometimes you've got to have that patience to be able to do that, to move forward and have power over your mind and do that. So that's wonderful. On that note, you know, there's so much more to talk to you. And as you said that at Rex Karamveer said that we say that, you know, our Chakra, the Karamveer Award and Fellowship is a trusteship to you, a responsibility to you to keep doing better and keep finding inspiration and keep making more people aware of the inspiration that is there within them and around them. On that note, I'd like to invite Jerry back into the conversation to touch upon some of the insights and ideas that we have talked about. Ji. Thank you so much. Thank you so much for having me too. Thank you. Pleasure's ours. Thank you so much. Namaste, Sumitra ji, once again. Namaste, namaste. Thank you so much. Thank you. How are you again? Pleasure listening to you. Right. So people like you and me don't get called to forums because we speak our mind out. है ना? But at Rex, we keep calling people who speak their minds out again and again. And, you know, one of the things which I wanted to articulate before provoking any thoughts is, you know, this change agents, change makers has been used for a long time in many places. है ना? And I don't agree with both the terms or nomenclature, as because change agent sounds very crude and cheap. जैसे कोई दलाल है, वैसे हो भी गया है, एनजीओ सेक्टर दलाली हो गया है ना, मतलब इन बिटवीन्स हो गए हैं, डोनर और रेसिपिएंट के बीच में जो दल्ले हैं वो हो गए हैं. आई एम यूजिंग टिपिकल मार्केट लिंगो so that people get the essence of it, है ना? And that is what change agent signifies. वैसे मोदी ने भी स्टार्ट किया है change agents का प्रोग्राम, है ना? मोदी को जचता है because वो है वैसा दल्ला, है ना? तो so that is what, right? जैसे है वो बोल देंगे. Change makers मतलब if anybody thinks that they can make any change, they are far away from the truth. Because frankly speaking, you cannot change anything or make changes in anything in the world or in anybody in the world. The only thing you can do is champion change within yourself. And that's why we use the term change champions, because champions compete with themselves, not with others. और आजकल NGO sector में मतलब competition हो गया है. It is competing for funds, competing to poach fundraisers, competing to poach staff. और लोग अपने आप को एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर कहते हैं, पर जब मतलब आप आज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसमें बच्चे का चेहरा दिखा के मतलब पैसे ऐंठ रहे हो लोगों से, और फिर कल दूसरे एनजीओ में काम कर रहे हो, तो आप में और सेल्समैन में फर्क क्या है? बिल्कुल. सेल्समैन आज किसी बैंक का मतलब अकाउंट बेचता है, कल उस बैंक को नीचा दिखा के दूसरे बैंक का अकाउंट बेचता है. वही फंड रेजर भी वैसे हो गए हैं. एंड आई एम अ फंड रेजर बाय पैशन. आई ऑलवेज से फंड रेजिंग इज नॉट अबाउट मनी, बिकॉज एज अ फंड रेजर यू आर much more higher influence. You have much more higher influence than even a founder of an organization, because what you're doing is you're getting people involved in the cause. Exactly. That's why my fundraising talks and workshops are titled fundraising is not about money, honey. It is about getting people involved in the cause to champion change along with you. And when you get people involved in the cause, you don't need to ask them for money. वो अपने आप देंगे. और उनको इन्वॉल्व करने के लिए जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, जोश चाहिए, और वो है नहीं, क्योंकि सब नौकरी वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं 9 to 5, 9 to 6, दिखाते हैं कि मतलब देश का सेवा कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं. सब बकवास, सब दकोसले दिखावा है. हिंदी ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल. It's so much nice to hear you. Right? आप चाहे मतलब, and the bigger the NGOs, the worse the crooks. और वो सब मतलब ऐसे बैठे होंगे जैसे संत हो. संत बनना तो दूर, जो काम करना है वो भी नहीं कर सके आप समझे मेरी बात? बिल्कुल. And they question you sometimes.
they'll question you because they can't manage the truth. They can't accept the truth. अब ये देखो कि कहते हैं आई एम एक्टिविस्ट, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कुछ आवाज नहीं उठा सकते हो, आप एक्टिविस्ट कहते हो अपने आप को, तो काय के एक्टिविस्ट हो आप फेसबुक पे एक पोस्ट डालने के लिए? अब दूसरी बात ये है कि द सेम पीपल हु गेट देयर सैलरीज बिकॉज ऑफ पीपल्स डोनेशंस एंड बायलैटरल फंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग एंड सीएसआर फंडिंग, अब आप देखो लोग काम कर रहे हैं एमनेस्टी में, you know, lot of people tell me that you not raised your voice for Amnesty and Oxfam, सबके मतलब आज FCRA खतरे में है, तो मैं कहता हूँ खतरे में क्या, कैंसिल कर देने चाहिए, क्योंकि इनके जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं ये देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, मतलब 5 स्टार लाइफ जियो, पार्टी पे पार्टी करो, मीटिंग पे मीटिंग, कितने ऑफसाइट करोगे यार, कितने मीटिंग करोगे पॉलिसी के लिए? पॉलिसी लिखने के लिए 10 मीटिंग नहीं चाहिए ना साल में इन एग्जॉटिक लोकेशंस, है ना? तो वो तो पैसे वैसे मतलब वेस्ट हो रहे हैं, तो कुछ कर तो नहीं रहे हो आप, और आप कम्युनिटीज को अपने आप यू मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन योर फंडिंग सो दैट योर सैलरीज कीप रोलिंग. Now my bigger concern is that people working in Amnesty, Oxfam, Save the Children, Plan, they all get their funding in the name of child soldiers, है ना? चाइल्ड सोल्जर्स जानते हो आप? जी. राइट, जो अफ्रीका में जो चिल्ड्रन, और हमारे इंडिया में भी है, आप अगर नक्सलबारी एरिया में जाओ, रीजन में जाओ, तो आपको वहां पे भी चाइल्ड सोल्जर मिलेंगे, और उनके नाम पे हम पैसे ऐंठते हैं एज एनजीओज. क्या करते हैं? वी लव टू टेक दैट वी आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन टू गिव देम अ बेटर लाइफ. अब इन सब लोगों को जिनका इनका पगार मिलता है इस डोनेशन से और इस फंडिंग से, जब अजमल कसाब की बात हुई तो I would see all these people working in NGOs, INGOs, international NGOs, getting their funding in the name of child soldiers, saying, hang Ajmal Kasab. Abak, if you really look at this is hypocrisy. Because Ajmal Kasab is a child soldier. He has been brainwashed by the terrorists from the age of 7. तो बच्चा है, बच्चे का मतलब पूरा मतलब दिमाग आपने खराब कर दिया है, तो उसमें उनका क्या दोष है? अगर आप ब्लड डायमंड करके मूवी देखो तो देयर इज अ सीन where the child is ready to attack his own father because he cannot recognize his father anymore. He's been brainwashed. Now my point is, and I won't get into the deeper insight of rehabilitating Ajmal Kasab because वो लोगों के सोच के बाहर है. My point is the same people who talk about rehabilitating child soldiers, चाहे वो इंडिया हो या अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, they are talking about hanging Ajmal Kasab. So look at the hypocrisy. So this is the hypocrisy of the, not, see, NGO sector is just a sector. It's the hypocrisy of the people working in the NGO sector and the UN. The UN as an organization is very needed because it is about uniting nations. But United Nations में जितने भी काम करते हैं उनका ईगो इतना बड़ा है, मतलब उनका ईगो उनके साइज से बड़ा है, UN के साइज से बड़ा है, मतलब वो वही है बात. तो that is the main thing, and that's the reason change champions, because you're championing change within you. जी. So it has puns intended at many levels. One is champions never compete with others, not like what NGOs do or people in NGOs do. Second is champions work on themselves. They are always trying to improve, continuously improve and evolve themselves. They are not competing with E2 or Sumitra. They are competing with themselves. It's a Usain Bolt. I'm not competing with you. If you beat me, I will respect that you worked hard to beat me. And that will motivate me to work harder on myself. Exactly. Right? Second thing you said about, and that is what I want to provoke an insight with, and you spoke about how NGOs are mostly after funding, which is there. But now the other trend in NGOs is that you have people who sit down and apply for awards everywhere and anywhere. और उस अवार्ड के साथ अगर पैसा आता है तो उसमें तो और भी एप्लीकेशन लग जाएंगे.
अब पिछले 2 दिनों में मतलब किसी बंदे को एक अवार्ड मिला है, ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड, कोई है दिस साले करके, एंड पीपल रोट टू मी, आई सेड frankly, by seeing his trend in the past 2 years, I can see that he's made a business out of applying for awards. So I really don't celebrate him. क्योंकि कई और टीचर है जो मतलब काम कर रहे जा रहे हैं और मतलब उनको कोई मतलब सेल्फ ग्लोरी की कोई पड़ी नहीं है ना? And I'm saying this that the one of the reasons that we created the awards is because we say we don't even need to apply. We'll curate you, but yes, you have to give us some credentials. But अगर आप मतलब उसको बैठ के धंधा बना रहे हो लोगों को मतलब अप्लाई करने का, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब I become wary of these people. What are your thoughts on this? नहीं, एब्सोल्युटली। आप जिस तरह से इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो मुझे रेक्स के साथ इतना क्लोज, आई फील सो कनेक्टेड, इज आल्सो जेरी, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई से एंड डू आर ऑल इसके सारे जो हम लोग कहते हैं ना, द ह्यूज आर ऑल प्रेजेंट इन योर स्पिरिट, इन व्हाट यू से, कि अगर हम लोग काम करते हैं तो वो काम ही आपको आपका नाम जो है, I mean, आपका काम क्या है, नाम आपके काम से बनता है. You should work. You should work. You should let your work speak for yourself. Exactly. And I would like to bring one point that Itu mentioned very beautifully, कि आजकल ये social media is का अगर अच्छे ढंग से इस्तेमाल करो, I mean, people, जैसे आपने कहा कि डीपी चेंज करने से या वहां का फोटो डालने से अगर आप you are trying to champion a social cause, I think इससे बड़ा फार्स जो है ये और कुछ भी नहीं हो सकता. तो ऐसे डाल के you are just trying to put जो भी current scenarios है, all these scenarios में practical level पे you are not working towards it, or you are not there to bring about, like you are not going to clean the gutter. आप जाते नहीं हो, अपना हाथ गंदा नहीं करते हो, और उसी में मतलब and that is where I find it a little challenging. So what are your thoughts on that? I mean, do you find it challenging for you? It is really, because like I said, Jerry, I have people who are posting those, I have used social media to the best. I've had people very sadly calling me up and in panels and all, calling me and say the most happening activists on social media. So Jerry, you can imagine what it hits you, because you know for a fact that he or she, that happened a couple of times, कि वो बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हो आप डालते हो. यस, करते हैं, इसीलिए डालते हैं लोग. साला कुछ नहीं करते, किसी और का फोटो डाल के यू बिकम एन एक्टिविस्ट, राइट? एंड देन एंड ओवर अ सीरीज ऑफ टाइम्स, अभी ये जो लोग डालते हैं और जो हर चीज का अवार्ड्स का धंधा बनाते हैं या अपने आप को एक्टिविस्ट या चैंपियन, सोशल सेक्टर के चैंपियन बनाने का, अगर आप देखोगे तो दे हैव ऑल दीज पोस्ट ऑफ जो चीजें होती है यहाँ वहां का, एंड देयर इज एक्चुअल क्या बोलते हैं, it will be your philosophy, it will be somebody else's philosophy जो बोलता है, या सिर्फ रूमी के या ऐसे सब डाल के आप पोस्ट बना के you become an activist on your own. साला फिर हम लोग इधर बोलते हैं ना, झक मार के इतने साल से उधर जाके काम करके आते हैं, and then you have the audacity to tell me, अरे she कितना है, आप देखिएगा, just go to Dore Foundation, you will see that she is, her posts are there all over social media. I know. No, चलो social media पे post डालना तो अलग है, because that is just copying and pasting and everybody knows whose quotes those are. But my bigger challenge is that when NGOs talk about, rights-based approach, we are activists, we are crusading against people who are marginalizing community, और फिर वही activists जाके मतलब they are sleeping with the enemy like Ambani, Adani, World Economic Forum. What are your thoughts on that? Well, I guess they're lucky enough to be invited to all these places, Jerry. Lucky enough ने बैठ के application लिखते हैं ताकि मतलब I mean, I do not know. चाहे वो आपका अंशु गुप्ता हो गूंज वाला, मैं तो नाम लूंगा लोगों का. Oh, I can go on and on about people like that जो मतलब, and I work, मैं जाके काम करती हूँ और मेरा वेंकट तो ही ब्रोकर्स डील्स, वेंकट कृष्णन जो है गिफ्ट फाउंडेशन का, ही तो ब्रोकर्स डील्स, दैट आई नो बिकॉज़ ही हैड डन दैट विद वेदांता विद एक्शन एड वे बैक इन 2003 कि स्टरलाइट विल गिव यू 41 lakhs, you have to ensure that शीला दीक्षित comes into the forum. ये मेरे पास रिकॉर्ड पे है.
And I had said to Harsh Mandar, we should not accept the money and we should not do this because we are not event managers for government and businesses to sleep together. To sleep together. नहीं, absolutely. I mean, they and मुझे ये बताओ जेरी, आपके पास मीडिया का एक बजट है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आई फेल टू कॉम्प्रिहेंड, आपके पास मीडिया के लिए बजट है कि आप वहां का सारा फोटोज डालोगे, वहां के वीडियोस डालोगे, वो भी यहाँ वहां से उठाए हुए वीडियोस डालोगे. No, so and that what I'm saying is it's not about media. I'm talking about a people. nexus. देखो आप इसको तो कहते हैं in typical terms it is called nexus. मैं तो nexus कहता हूँ these are crony cartels. वो हम बोलते हैं ना crony capitalist, cronyism between. This is the cronyism between people in government, NGOs, and business. So the whole process was started by Ramesh Mangaleshwaran of McKinsey and Company, who reached out to Venkat Krishnan of Give Foundation, who reached out to us at ActionAid. 2003 की बात है. Cutting बेच सकता हूँ मैं आपको. Sterlite gave us 41 lakhs so that they could get a meeting with Sheila Dikshit to get some things passed. This is the way philanthropy works. Record पे बोल रहा हूँ, live पे बोल रहा हूँ. पूरा record पे है. Expose कर सकते हैं इनको. तो ये है आपका nexus. और यही लोग कहेंगे that we are doing right and we are righting wrongs. तो ये कोई मतलब these are the worst because in the name of the NGO sector they are doing everything wrong. So that is what I'm saying. So I mean, then where that's why I wrote that article, The Activist Ethic and Principle. That how can you say you're an activist when you're sleeping with the enemy? चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई दूध का दूल्हा नहीं है ना. तो अगर आप कांग्रेस के साइड पे हो तो आप कांग्रेस जितने करप्ट हो. कांग्रेस भी कम्युनल है और बीजेपी भी करप्ट और कम्युनल है. तो दिस इज वेयर द एक्टिविज्म loses out. So how are then you complaining about क्या बोलते हैं उनको, Amnesty losing their FCRA and all? Amnesty is losing their FCRA because of all nonsense like this, because you're using activism to do partisan politics, right? So that's the basic insight I wanted to share with you and provoke with you. So that's what. बाकी वो जो मतलब छिछोरे मतलब वो पोस्ट डालते हैं फेसबुक, उसमें 30 लोग पढ़ते होंगे, but that is not important. The bigger problem is what I'm telling you, that one side you're saying we are against businesses who are doing wrong, then on the other side you're going and applying for awards with Ambani and Adani and World Economic Forum. So clash है. That's the bigger problem. Facebook पे पोस्ट 30 लोग पढ़ते हैं. उन लोगों को वो ज्यादा मायने रखता होगा. I mean for them their क्या बोलते हैं उनको, receiving an award or being वो felicitation must be more important than their integrity. So that is what I'm saying, you know, that I mean, I'm saying that it's not just about the award. It's about it's the award is the least of my worries. The bigger worry is the coalition, the unholy nexus. That's the bigger worry. That's the insight I'm trying to provoke for you and for the audience, right? तो हमें एक वो हमारे एक मेंटर हैं, उन्होंने पहले बार मुझे आइसनोवर अवार्ड के लिए, आइसनोवर फेलोशिप के लिए नॉमिनेट किया. दिस वाज इन 2006 or sorry 2005 or 6, and I refused because उसमें clearly लिखा था कि the president of the United States would give the award to you. President of the United States was Mr. George Bush Jr. at that time, who I think is a war criminal and a terrorist. So I said I cannot take the award from him. उसके बाद मैंने पॉलिसी बना दी कि नहीं लेंगे अवार्ड, है ना. फिर एक और किसी ने नॉमिनेट किया फॉर येल फेलोशिप. आई रोट टू देम, थैंक यू वेरी मच, नॉमिनेट कर दिया, पेट भर गया, नहीं ले सकते हम, है ना. दिस वाज इन 2009. 2010 I worked with Nilima Mishra to provide capital for all the farmers and create a strategy there for them for farming. And Nilima Mishra had अब ये सुनो आप, had a mentor called Dr. Jagannath Wani, God bless his soul. And I met Jagannath Wani, whose team of film producers were making a film on Nilima's work. And because I had started this project called Caring Capital with Nilima, I happened to be there when the crew was there. So Dr. Jagannath Wani convinced me that you should also be in the film. And then he said, I had done a similar film for Baba Amte and sent it to the Magsaysay committee. And that year, Baba Amte got the Magsaysay award. And this year, I'm going to send Nilima's film. So this year, she will get the Magsaysay award. And I think you should also
be nominated, because I've read about your work, etc. So I said, sir, I don't take awards. But I thought, मतलब ऐसे मतलब फट्टे मार रहा है कि मैक्सेसे will film देख के देगा. Nilima Mishra got nominated. And I also got nominated because they saw me in the film, and Dr. Vani, against my wishes, had put the thing. So this is how the award process works. Saying it on record, live. जो है सत्य है, सत्यमेव जयते. Namaste. Have a good evening. Thank you so much. Thank you, Jerry. Thank you, Thank you. Sumitra ji. Thank you so much. For a Thank you wonderful having me. evening. Thank you so And much. thanks for See great you. Bye-bye. insights as always, Jerry. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you so much.